Good morning students. In previous video we have completed first unit, that is some basic concept in chemistry. Today we'll start unit 2, the structure of atom. In previous unit we studied Dalton atomic theory about matter. According to that theory, all matter consists of very small large number of individual particles called as atoms. But in the beginning of 20th century, different studies and experiments proved that atoms are consist of three particles, smaller particles, and these particles are electron, protons, and neutrons. These particles are known as fundamental particles or subatomic particles and have complex structure in an atom. First of all, we take the first discovery of electron. तो इन सभी पार्टिकल की डिस्कवरी कैसे हुई, तो आगे फर्दर हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पढ़ेंगे. Discovery of electron that was done by J.J. Thomson, the name of scientist, when he was studying conduction of electricity through different gases at low pressure in discharge tube और Crookes tube. Discharge tube जो है एक cylindrical tube है of length approximately 60 centimeter. It is provided with two electrode, cathode and anode. Cathode जो है, it is attached to the negative terminal of battery and have negative charge. Anode attached to the positive terminal of battery and have positive charge. This discharge tube also provided with one vacuum pump, which is used to reduce the pressure of gas taken in the discharge tube. During experiment, he made following observations. He observed that at normal pressure, the gas always remain non-conducting in nature. इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती थी. whatever high voltage may be applied, जितनी ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दो फिर भी गैस जो है वो नॉन कंडक्टिंग रहती थी at normal pressure. But when pressure of gas inside the tube is reduced to 10⁻⁻2 atmospheric, जब 10⁻⁻2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम किया गया तो इस और फिर वोल्टेज अप्लाई की गई, तो इससे जो है एक लाइट रेज जो है कमिंग आउट फ्रॉम द कैथोड टू एनोड, एंड ही नेम्ड दैट रेज एज ए कैथोड रेज. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब प्रेशर ऑफ गैस inside the discharge tube is reduced to 10⁻⁻2 atmospheric, gas inside the discharge tube become conducting nature, and one light rays is observed coming out from cathode to anode, and he named that rays as a cathode rays. J. Thomson further studied the nature of cathode rays, and he found that cathode rays travel in a straight line because it casts the shadow of object placed on their path. जैसे लाइट जो होती है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, वैसे ही कैथोड रेज इज आल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. सेकंड जो है, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स बिकॉज दीज रेज रोटेट द व्हील विच इज प्लेस्ड ऑन इन देयर पाथ. जब इसके पाथ में व्हील रखा जाता था तो उस व्हील को ये व्हील रोटेट होना शुरू होता है. तो इसका मतलब हुआ कि कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल जिसका मास है उससे बनी है. और तीसरा पॉइंट जो कैथोड रे के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पता लगा कि कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बिकॉज दीज रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ये डिफ्लेक्ट होती है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो दो इनके इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये डिफ्लेक्ट हो रही थी रेज, मींस ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बनी है, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज जो आपस में अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज जो रिपेल करते हैं. इसके बाद जे थॉम्सन फर्दर डिटरमिन द चार्ज टू द मास रेशियो ऑफ द कैथोड रेज एक्सपेरिमेंटली, एंड ही फाउंड दैट ऑल दी जो E/m हो या अदर जो प्रॉपर्टीज हो कैथोड रेज की या कैथोड रे पार्टिकल की, do not depends upon the nature of gas taken inside the discharge tube.
गैस को आप कोई भी गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में ले लेते थे तो उसकी कैथोड रे जब ओरिजिनेट होती थी तो उनके जो पार्टिकल्स हैं उनका ई बाई एम रेशियो एंड अदर जो प्रॉपर्टी थी डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये नोट करने वाला है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट इट वाज कंक्लूडेड दैट कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं कैथोड रेज के दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एटम्स ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। वो ओरिजिनेट हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं, कैथोड रे कहाँ से बाहर निकल रही है, फ्रॉम द डिफरेंट एटम्स ऑफ गैस टेकन इन ए डिस्चार्ज ट्यूब। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल या कैथोड रे जो बाहर निकल रही है ये गैस जो भरी गई है उसके एटम से बाहर निकल रही है एंड दीज एटम्स आर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। तो जे थॉम्सन ने ई बाई एम रेशियो जो निकाला उसकी वैल्यू थी 1.76 इंटू 10⁻⁻11 कूलम पर किलोग्राम। इसके बाद आर ए मलिकन इन 1917 डिटरमिन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड एक मेथड है विच यूज टू डिटरमिन द चार्ज ऑफ पार्टिकल एक्सपेरिमेंटली एंड चार्ज कम्स आउट टू बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड इस चार्ज को हम बोलते हैं 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। एंड by using E by M ratio and E, that is charge on electron, mass of electron was determined and it is equal to mass of electron is equal to E divided by E by M is equal to 1.6। ये पूरा इसको भर दिया चार्ज एंड E by M रेशियो को, तो ये इट M that is mass of electron comes out to be 9.1 into 10⁻31 किलोग्राम और 9.1 into 10⁻28 ग्राम में। ठीक है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया एंड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 divided by 1837 टाइम मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एक एटम का मास ही कितना कम होता है और उसका भी ये 1/1837 भाग है मास ऑफ एन एटम ऑफ मास ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन दी गई, दस एन इलेक्ट्रॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज और जिसकी वैल्यू ये है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम एंड हैज मास इक्वल टू 1 divided by 1837 टाइम द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। नेक्स्ट लेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि एटम जो होता है इलेक्ट्रिक एंड न्यूट्रल होता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया मतलब एटम पता चल गया कि एटम के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल है, तो ये पता मतलब ये अंदाज़ा हो गया कि देयर आर सम अदर पार्टिकल विच हैज़ पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम। एटम में ऐसे पार्टिकल होने चाहिए जिसमें चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को वो न्यूट्रलाइज करेगा। तो उसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है वो दैट वाज डन बाय ई गोल्डस्टीन व्हेन ही वाज डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन डिस्चार्ज ट्यूब बाय टेकिंग परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड होता है ऐसा कैथोड जिसमें बीच में होल्स हों या बीच में छिद्र हों, ये पोरस जो जिनका पोरस जो इलेक्ट्रोड होगा दैट इज परफोरेटेड कैथोड बोलेंगे उसको। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब रिड्यूस टू 10⁻² एटमॉस्फेरिक, इन एडिशन टू कैथोड रे, मतलब इन एडिशन कैथोड रे तो बाहर निकलेगी बट एडिशन टू कैथोड रे ही ऑब्जर्व अनदर रेज स्ट्रीमिंग आउट फ्रॉम द कैथोड opposite to the direction of cathode ray of discharge tube and he named that rays as a anode ray or canal rays या positive rays भी उसको कहते हैं। तो जब प्रेशर को रिड्यूस किया 10⁻² एटमॉस्फेरिक, कैथोड रे तो निकलेगी कैथोड से एनोड की तरफ जाएगी, लेकिन कैथोड के पीछे से बिहाइंड द कैथोड या ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ कैथोड रे वन न्यू रेज वाज ऑब्जर्व एंड ही नेम्ड दैट रेज एज ए एनोड रे या पॉजिटिव रेज। बाद में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो स्टडी किए गए, तो कैथोड रे जो है एनोड रेज भी कैथोड रे की तरह ही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और मटेरियल पार्टिकल से बनी है, लेकिन
इनके जो पार्टिकल्स थे, एनोड रे के जो पार्टिकल्स थे, उनका जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, दे आर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, बिकॉज दीज रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैथोड रे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थी किसी की बनी थी, और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से बनती है, ठीक है। अगला पॉइंट था ई बाई एम रेशियो जो है वो एनोड रे का, जो एनोड रे के पार्टिकल थे, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रे का जो ई बाई एम रेशियो था वो नेचर ऑफ गैस को डिपेंड नहीं करता था, लेकिन एनोड रेज का ई बाई एम रेशियो जो है डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। एंड इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस की एनोड रे थी, उनके पार्टिकल का ई बाई एम रेशियो जो मैक्सिमम था, और उनके पार्टिकल का जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज था, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज था, जब हाइड्रोजन गैस ली तो उसकी जो एनोड रेज बनी, उसके जो पार्टिकल्स थे, चार्ज तो पॉजिटिव था, लेकिन उन पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जो था वो दैट वाज सेम टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ particles of cathode ray या electron, and that was 1.6 into 10 to minus 19 coulomb positive charge, ठीक है। एंड these, जब इन पार्टिकल्स का जो एनोड रेज थी हाइड्रोजन गैस की, उनके पार्टिकल का जब मास निकाला गया तो इट कम्स आउट टू बी 1.67 into 10 to minus 27 किलोग्राम, या ग्राम में 1.67 into 10 to minus 24 ग्राम, and this value was same to the mass of an atom of hydrogen. And these particles, ये particles of anode rays in case of hydrogen gas are named as proton. Thank you.